اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ہمارے چینل ڈیپ انسائیڈ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی سینسٹیو موضوع ہے، جسے ہم قرآن، سائنس اور ایک خاص سوچ کی نظر میں دیکھیں گے کہ وہ موضوع جو ہے اس کے بارے میں ہر ایک کا کیا خیال ہے، قرآن کا کیا خیال ہے، قرآن کا جو نظریہ ہے، جو سالڈ بات ہے وہ کیا ہے، سائنس کی اس کے بارے میں تحقیقی رائے کیا ہے، اور ایک خاص سوچ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو دوستو اختلاف رائے رکھنا ہر ایک کا سوشل رائٹ ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ کسی کی رائے سے اختلاف رکھ سکتا ہے مضبوط دلائل کے ساتھ۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں۔ دوستو ہمارا جو موضوع ہے وہ زمین کی گردش کے بارے میں ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے۔ سوچ جو ہے کچھ لوگ ہیں خاص، ان کا یہ خیال ہے، ان کے پاس بھی مضبوط دلائل ہوں گے، ان کا یہ خیال ہے کہ زمین ساکن ہے۔ تو دوستو اگر آپ زمین کو ساکن مانیں گے تو پھر آپ کو گریویٹی کو بھی نیگلیکٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو بہت سی چیزوں سے ہاتھ پیچھے کرنا پڑے گا، پھر آپ کو کشش ثقل سے بھی انکار کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنے ہے۔ اور قرآن زمین کے بارے میں زمین کا نام منشن کر کے یہ نہیں کہتا کہ زمین بالکل ساکت ہے، یہ زمین بالکل چل رہی ہے۔ قرآن نے اس بارے میں کیا رائے دی ہم اسے بھی دیکھیں گے۔ تو دوستو سائنس کی نظر میں جو ارتھ ہے اس کی دو طرح کی موومنٹ ہیں، ایک کو ارتھ روٹیشن کا نام دیا گیا ہے، ایک کو ارتھ ریولوشن کا نام دیا گیا ہے۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں ارتھ روٹیشن کیا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین دو طرح سے موو کرتی ہے، ایک ہے ارتھ روٹیشن جو اس کے اپنے ایکسس کے گرد ہے، جسے سوئنگنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ مثال یہ لے لیں کہ ایک سائیکل کا جو پہیہ ہے وہ آپ سائیکل کو سٹینڈ پہ لگائیں اور اس پہیے کو گھمانا شروع کر دیں، اور وہ جو اپنے ایکسل کے ارد گرد موو کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، جو اس کے روٹیٹری موشن ہے، اسی طریقے سے ارتھ اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے۔ دوسری چیز ہے ارتھ ریولوشن۔ ارتھ ریولوشن جو ہے وہ سورج کے گرد ارتھ کا ایک چکر ہے۔ دوستو اگر ہم دیکھیں تو زمین ایک خیالی لائن کے گرد گھومتی ہے جو کرۂ ارض کے شمالی اور جنوبی قطب سے گزرتی ہے۔ اس لائن کو گردش کا محور کہا جاتا ہے۔ زمین اس محور کے بارے میں ہر دن ایک بار گھومتی ہے، لگ بھگ 24 گھنٹے۔ اگرچہ آپ اس حقیقت کو شاید پہلے ہی جانتے ہو، لیکن اس میں ایک پیچیدگی ہے وقت کے لحاظ سے بھی، جو فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز آ جاتی ہے کہ زمین کے اس گھومنے سے کیا ہوتا ہے۔ زمین کے اس گھومنے سے دن اور رات بنتے ہیں۔ زمین کے اس گھومنے سے جب دن اور رات بنتے ہیں تو قرآن نے اس بارے میں بھی کہا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے ہم دن اور رات کو ایک دوسرے پر لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اگر بات کریں کہ زمین کی جو یہ روٹیشن ہے اس سے مزید کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے دن گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، ہمارے اوقات کا تعین ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم زمین کی سورج کی گرد جو ریولوشن ہے، جو چکر ہے، اس کی بات کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے، سائنس کی یہ صادق رائے ہے کہ اس سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے جو 4 موسم ہیں زمین پر میجر، ایک سردی، گرمی، خزاں اور بہار، وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی سائنس کی رائے زمین کے روٹیشن کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ایک مضبوط دلیل ہے، ایک ایفیکٹ ہے جسے کوریولیس ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایفیکٹ فزکس کی نظر میں کیا ہے، پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ It is an effect whereby a mass moving in a rotating system experiences a force acting perpendicular to the direction of motion and to the axis of rotation۔ اگر ہم اس کی بات کریں کوریولیس ایفیکٹ کی تو ہم یہ کہیں گے، مثال کے طور پر ایک ہم لانچ کرتے ہیں ایک چیز، جو ہم نے اسلام آباد ایک میزائل داغا، اگر ہم کوریولیس ایفیکٹ کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو یہ میزائل اسلام آباد تک نہیں پہنچے گا، یہ غصے میں ادھر ادھر نکل جائے گا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کوریولیس ایفیکٹ ہے، کوریولیس فورس ہے، یہ ایکویٹر پر 0 ہوتی ہے، خط استوا پر 0 ہوتی ہے، پولز پر میکسیمم ہوتی ہے، یا پھر قطبین پر یہ میکسیمم ہوتی ہے۔
इक्वेटर पर इस फोर्स के जीरो होने की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है वो मैक्सिमम होती है, और पोल्स पर इस फोर्स के मैक्सिमम होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो है वो मिनिमम होती है। ये इफेक्ट की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे इस वीडियो में अभी आपको दिखाया जाएगा। देखें, दो बच्चे बैठे हुए हैं और एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहा है। एक झूले में बैठे हुए हैं, ये झूला मूव कर रहा है, दूसरा जब पहले की तरफ बॉल फेंकेगा तो इस रोटेशन की वजह से, अगर वो एक रोटेटिंग सिस्टम में है और उस रोटेटिंग सिस्टम के अंदर उस एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं कोई फ्लूइड मौजूद है, कोई फ्लूइड मौजूद है जैसे एयर या वाटर, तो उस रोटेशन की वजह से, उस फ्लूइड के इफेक्ट की वजह से, उस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो ऑब्जेक्ट एक से दूसरे की तरफ नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो टर्न हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो स्लाइड कर जाएगा। ये कोरियोलिस इफेक्ट इस चीज को वेरीफाई करता है कि जमीन जो है वो घूम रही है। एक दूसरी चीज, इस कोरियोलिस इफेक्ट को जो है वो अटली में भी मद्देनजर रखा जाता है, मिसाइलों को लॉन्च करने में, रॉकेट स्पेस में भेजने में, और इसके अलावा हर चीज़ जो उड़ान भरती है उसके अंडर इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाता है, कोरियोलिस इफेक्ट को। अब हम आते हैं कि इस चीज़ के बारे में, ज़मीन की गर्दिश के बारे में कुरान की क्या राय है। तो दोस्तों, हम कुरान की अगर राय को देखें तो अल्लाह ताला सूरा नंबर 13 आयत नंबर 2 में फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सुतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम उसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसी ने सूरज और चांद को मातहती में लगा रखा है, हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। अब अगर आप गौर करें तो इसमें, इस आयत में कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है अजल मुसम्मा। कुल का मतलब होता है ईच, हर एक। अब इनमें हर एक में शामिल हो गई हर चीज, यानी कि इसमें कुल्लुन अजराम फल्की, तकरीबन जो भी चीज खला में मौजूद है हर चीज गर्दिश में है, कोई भी चीज साकिन नहीं है। अब अगर हम बात करें ज़माने कदीम की, तो अरब के लोगों का ये ख्याल था, कुछ पुराने लोगों का, कुछ ओल्ड सिविलाइजेशंस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एग्जिस्ट करती थी, उनका ये ख्याल था इतने अजराम फल्की हैं, वो आसमान पर नस्बें जुड़े हुए हैं आसमान के साथ, आसमान घूम रहा है, आसमान के घूमने के साथ साथ वो भी घूम रहे हैं। ये तफसीर उस्मानी में लिखा हुआ है इस आयत की तफसीर में। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने ये आयत नाजिल की तो उनका वो ख्याल रद्द हो गया। फिर अल्लाह ने फरमाया इस आयत में कि आसमान पर वो करार पकड़े हुए हैं, और ये जो बाकी चीज़ें हैं अजराम फल्की, ये अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पर चल रही हैं। अगर हम आसमान की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन आसमान अल्लाह ताला ने हर जगह इकट्ठा जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आसमान रुका हुआ है तो ज़मीन भी रुकी हुई है। पहली बात, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, जोड़े की शक्ल में, पेड़ की शक्ल में हमने हर चीज़ को पैदा किया है। अगर हम इसी आयत को मद्देनजर रख लें तो जनाब जोड़ा जो होता है ना, उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। एक मेल है मसलन और एक फीमेल है, दोनों एक दूसरे के एंटी, जैसे एक फोटोन होता है तो दूसरा एंटी फोटोन होता है, उन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगर आसमान रुका हुआ तो फिर ज़मीन गर्दिश में है। अब दूसरी जगह कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया, और उनमें से हर एक अपने अपने मदार में तैरते फिर रहे हैं। यहाँ भी ये चीज़ वाज़ह होगी कि सूरज, चांद और हर एक अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। ये थी सूरह नंबर 21 और आयत नंबर 33 थी। अब अगर हम आ जाएं एक और आयत की तरफ, तो उस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है सूरज के बारे में, ये कुरान मजीद की सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में, और सूरज के लिए जो मुकर्ररा राह है वो उसी पर चलता रहता है। यानी सूरज तो चल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, चांद भी चल रहा है, इस बात पर भी कोई शक नहीं है। बात थी ज़मीन की, तो हमने करीन कयास के साथ साइंस की नज़र में और कुरान की नज़र में ये साबित कर दिया है कि ज़मीन जो है असल में रुकी हुई नहीं है। एक आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये ज़मीन को जब हमने पैदा किया तो ये हिल रही थी, फिर हमने इस पर कीलें ठोंक दी पहाड़ों की शक्ल में। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि ज़मीन गर्दिश करना रुक गई है, ज़मीन हिलती थी, जलजले आते थे ज़मीन पर। ये पहाड़ जो है ये ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स को
अकड़ कर खड़े हैं, रुकी हुई है, जमीन को हिलने से, इधर उधर हिलने से इन पहाड़ों ने रोक रखा है, जलजलों से रोक रखा है। आप इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं ले सकते कि जमीन जो है वो घूम नहीं रही। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को भी बात किसी हद तक समझ में आ गई होगी। दोस्तों इन आयात की नज़र में और साइंस के जो फैक्ट्स हैं, फिगर एंड फैक्ट्स, जो रियलिटीज हैं, जो एस्टेब्लिश्ड लॉज हैं अकॉर्डिंग टू द रोटेशंस एंड एवोल्यूशंस ऑफ साइंस की नज़र में मेरी ये राय है कि ज़मीन जो है वो गर्दिश कर रही है, जिसकी वजह से सुबह होती है, शाम होती है, दिन होती है, रात होते हैं, फिर मौसमों की तब्दीली, वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है, उसकी बिना पर मौसमों की तब्दीली होती है। एक बंदा ये कहता है कि चांद घूम रहा है, ठीक है मानते हैं चांद घूम रहा है, लेकिन अगर आप चांद पर खड़े होकर ज़मीन को देखेंगे तो फिर चांद घूमता हुआ नजर नहीं आएगा आपको ज़मीन घूमती हुई नजर आएगी। तो इख्तिलाफ राय रखना आपका हक है, आप रख सकते हैं अपने दलाइल की रोशनी में। इन दलाइल की रोशनी में जो मैंने दिए, मेरा ये नजरिया है कि जमीन जो है वो गर्दिश भी कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द भी और सूरज के गिर्द भी। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सबको